Good morning class 3 students. My name is Khushbu Jain and today I am going to teach you EVS chapter 5th Chotu's house. I am also going to explain you this chapter in Hindi with your book exercise as well as question answers which you have to complete in your notebook. So let's start. Chotu's house. So by the name itself you can understand it. This is a story of Chotu. So let's begin. So students, in this chapter you can observe these pictures which is given below and we have to understand what's the story about. So let's start. In first picture you can see this is a little boy named Chotu who came to Mumbai for first time. ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है जिसका नाम छोटू था और जो कहाँ पे आया था पहली बार, मुंबई में. सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इट्स रेनिंग यानी बारिश होना शुरू हो गई, पर छोटू के पास रहने की कोई जगह नहीं थी, ना उसके पास कोई घर था. इन थर्ड पिक्चर यू कैन सी दैट छोटू इज स्लीपिंग इन सीवेज पाइप. तो जैसे ही बारिश होना शुरू हुई उसके बाद में छोटू को अपने सामने एक सीवेज पाइप दिखा. उसे देख के उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपना घर इस सीवेज पाइप में ही बना लूँ. तो छोटू वहाँ पे जाके और सो गया. फोर्थ पिक्चर में ये दिखाया गया है कि छोटू वहाँ पे खाना बनाता था, कपड़े धोता था और रहता भी था. तो इज वॉशिंग द क्लोथ्स, ड्राइंग द क्लोथ्स, कुकिंग एज वेल एज स्लीपिंग इन द सीवेज पाइप. Now students, see this picture which is given in next page. So in first picture what is given below? छोटू ने मोनू को देखा. किसको देखा? मोनू को. वो भी छोटा सा बच्चा था जो पहली बार मुंबई आया था और उसके पास भी रहने को कोई घर नहीं था. इन नेक्स्ट पिक्चर इट इज़ गिवन दैट छोटू एंड मोनू आर लिविंग टुगेदर. तो छोटू ने ये सोचा कि मोनू भी मेरी तरह पहली बार मुंबई आया और उसके पास भी कोई रहने की जगह नहीं है, तो क्यों ना हम साथ में ही रह लें. तो उसने मोनू को इनवाइट किया अपने साथ रहने को और फिर वो दोनों एक साथ रहने लगे खुशी खुशी. किसमें? सीवेज पाइप में. नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू शो यू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ हाउस. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, दिस इज अ पिक्चर ऑफ बेडरूम which we use to live and sleep. Okay, now this is a picture of a storeroom where we store our daily necessities items. This is a picture of kitchen in which we cook food. This is a picture of puja room where we pray to God. This is a picture of dining room where we sit and eat our breakfast, lunch as well as dinner. This is a picture of garage where we keep our cars or anything else. Now I am going to show you the worksheet which you have to complete in your notebook. So let's start. First of all, give the heading of your chapter name, then start. Select the best ones, means you have to tick the correct answer. So first question, Lata decorated her house with rangoli, flower petals, leaves or all of these. Answer is all of these. Second question,
Chotu stores water in a mug, a bucket, a bowl, or a drum. Answer is a drum. Chotu lived in a brick house, wooden house, pipe, or garage. Answer is pipe. Fourth question. How did Chotu use the pipe? A place to cook food, a place to live in, a dining room, none of this. Answer is a place to live in. The first object of Chotu to live in the pipe is to live in. Fifth question. Chotu used the area surrounding the pipe for cooking, walking his dog, drinking water, or sleeping. Answer is cooking. So, by giving the heading question number 2, you have to write true, false. Question number 1 of true, false. Mosquitoes live in our house as uninvited guest. ट्रू और फॉल्स? मॉस्किटोज जो होते हैं वो हमारे घर बिन बुलाए आ जाते हैं. क्या ये सच है या झूठ? ऑब्वियसली सच है. ट्रू. सेकेंड क्वेश्चन. छोटू एंड मोनू sat in the pipe to have tea. छोटू और मोनू पाइप के अंदर इसलिए बैठे थे ताकि वो चाय पी सके. ट्रू या फॉल्स? सच या झूठ? झूठ है, फॉल्स. थर्ड क्वेश्चन. व्हेन छोटू फर्स्ट केम टू मुंबई ही डिड नॉट हैव अ हाउस. जब छोटू पहली बार मुंबई आया था तब उसके पास रहने को कोई घर नहीं था. क्या ये सच है या झूठ? सच है, ट्रू. फोर्थ क्वेश्चन. छोटूज हाउस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. छोटू का जो घर था वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ था? 2 पार्ट्स. क्या ये सच है या झूठ? फॉल्स, झूठ है, क्योंकि छोटू का जो घर था वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ था? 3 पार्ट्स में. ठीक है. 1 इज कुकिंग एरिया, 1 इज वॉशिंग एरिया एंड 1 इज लिविंग एरिया. फिफ्थ इज द डेकोरेशन शोन इन लता's हाउस इज ऑन हर विंडो. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. नाउ give the heading question number 3. Fill in the blanks. Question number 1. Rats have poor eyesight. जो चूहों की जो नज़र होती है वो कमज़ोर होती है. eyesight means आँखों की नज़र. सेकेंड क्वेश्चन. लता's house is decorated beautifully. आंसर इज डेकोरेटेड. लता का जो घर था वो बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ था. डेकोरेटेड मीन्स सजाना. थर्ड क्वेश्चन. आवर होम्स हैव मैनी काइंड्स ऑफ अनइनवाइटेड गेस्ट. हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट ऐसे होते हैं जो अनइनवाइटेड होते हैं. बहुत सारे मेहमान जो है वो अनइनवाइटेड होते हैं. जैसे लिजार्ड जो छिपकली होती है वो बिन बुलाए हमारे घर में आ जाती है. जैसे मॉस्किटोज जो बिन बुलाए हमारे घर में आ जाते हैं. दे आर अनइनवाइटेड गेस्ट, जिन्हें हम बुलाना नहीं चाहते, जिन्हें हम बुलाते नहीं हैं बट वो अपने आप आ जाते हैं. नंबर 4th क्वेश्चन. छोटू स्लीप इनसाइड द पाइप. छोटू कहाँ सोता था? पाइप के अंदर. इनसाइड मीन्स अंदर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. हेडिंग आंसर इन 1 word और 1 sentence. क्वेश्चन नंबर 1. वाई डिड छोटू नीड अ हाउस इन मुंबई. छोटू को मुंबई में घर क्यों चाहिए था? छोटू नीडेड अ हाउस इन मुंबई टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन, विंड एंड कोल्ड. छोटू को मुंबई में घर इसलिए चाहिए था ताकि वो अपने आप को बचा सके. किससे? बारिश से, हवा से और ठंड से. सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट शेल्टर्ड छोटू फ्रॉम रेन व्हेन ही फर्स्ट केम टू मुंबई. जब छोटू पहली बार मुंबई आया था तब जब बारिश हुई थी तब वो कहाँ गया या वो कहाँ उसने जाके अपना शेल्टर बनाया. छोटू टुक शेल्टर इन अ पाइप टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन. छोटू ने अपना घर पाइप में बनाया अपने आप को किससे बचाने के लिए? बारिश से. वेयर डज छोटू हैंग हिज क्लोथ्स टू ड्राई. छोटू अपने कपड़े कहाँ धो के सुखाता था? आंसर. छोटू हैड
Put a rope in front of the pipe to hang his clothes for drying. छोटू ने अपने जो पाइप जहाँ पे उसने घर बनाया था उसी के सामने एक रोप लगा के और वहीं पे वो कपड़े सुखाने लग गया था. ड्राइंग मीन्स सुखाना. क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इन आवर हाउस डू वी यूजुअली फाइंड बर्ड्स. हम अपने घर में कहाँ बर्ड्स को देख सकते हैं. वी यूजुअली फाइंड बर्ड्स इन आवर पोल्ट्री यार्ड. ओके. क्वेश्चन नंबर 5, नेम एनी 5 अनइनवाइटेड गेस्ट हु लिव इन आवर हाउसेस. ऐसे 5 अनइनवाइटेड गेस्ट का नाम बताओ जो आपके घर बिन बुलाए आ जाते हैं. मॉस्किटोज, जो मच्छर होते हैं जो बिन बुलाए हमारे घर आ जाते हैं. स्पाइडर्स, मकड़ी. लिजर्ड्स, छिपकली. एंड्स एंड कॉकरोचेस. ठीक है. These are the invited guests in our houses. So this is all for today. Students, you have to complete this work in your notebook. I hope you understood this chapter very well. So don't forget to like and subscribe this video. Thank you and have a nice day.